Students, we are starting new chapter today, and that is chapter number 11 of your book, and the name of chapter is alcohols, phenols and ethers. So 11th में जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, at that time you came to know about many examples of alcohols, phenols and ether. Now alcohol contains OH group as the functional group, and phenol also contains OH group, hydroxy group as their functional group, and ether contains a divalent oxygen atom as the functional group. So the functional group in these compounds are this one: hydroxy and alkoxy. Alkoxy, why? Because it is attached with one alkyl group. It is hydroxy, why? Because it is attached with hydrogen. और यहाँ पर ether में एक alkyl group R attach होता है, so it becomes alkoxy group. So hydroxy and alkoxy, because the alkyl is attached on one side of oxygen, other side there will be normally hydrocarbon part, the carbon chain. So this is the functional group, and main difference between alcohol and phenol is that alcohol का hydroxy group किसी aliphatic hydrocarbon पे attach होता है, so it is ROH, where hydroxy group is attached on aliphatic hydrocarbon, while same hydroxy group in the case of phenol it is attached on aromatic hydrocarbon. AR indicates aromatic hydrocarbon like benzene ring, so it is aromatic hydroxy derivative of aromatic hydrocarbon. And in the ethers, this alkyl group, this oxygen atom can be attached on two alkyl group or two aryl groups, or it can be one alkyl, one aliphatic and one aromatic part. In any condition we will call it as ether. So this is the functional group. Today we are going to start the study of alcohols, and when alcohol will be finished, then we will go to phenols and then ethers. So systematically हम लोग को पहले alcohol से शुरुआत करनी है. We are going to start with alcohol first of all. So let's rub this. इसको आप लोग नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके. So let's start with alcohols. See, alcohols are of many type. Basically जब हम alcohols को classify करते हैं, alcohols का जहाँ पे भी classification समझना है, so you should understand that के alcohols जो भी कार्बन एटम पर OH ग्रुप अटैच्ड है, that कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. Hybridization of the carbon atom is very important. It has been found that because hybridization अगर थोड़ा अलग हो जाए, sp3, sp2, sp, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी में बहुत फर्क आता है. इसीलिए अल्कोहल को क्लासिफाई करते वक्त ऐसा भी पॉसिबल है कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है वो सैचुरेटेड कार्बन हो, उसमें 4 सिंगल बॉन्ड हो. एट दैट टाइम दिस कार्बन इज हैविंग sp3 hybridization, or it is also possible that the carbon in the alcohol which is attached with OH group, actually ये कार्बन किसी डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो. So if it is involved in the double bond, then this carbon atom is having sp2 hybridization. And the last possibility is that OH containing carbon,
functional group containing carbon is also the part of triple bond. तो ये किसी ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो सकता है, एंड एट दैट मोमेंट दिस कार्बन एटम विल हैव sp hybridization. So while classifying alcohols you need to look के hybridization of carbon atom कौन से टाइप का है. Look that what is the type of hybridization of carbon atom. What is hybridization? तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और ये तीनों अल्कोहल्स अपनी रिएक्टिविटी में बहुत बहुत डिफरेंट है. इसमें जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, दे डिफर्स मच इन देयर रिएक्टिविटी पार्ट. इनकी रिएक्टिविटी काफी अलग होती है. आगे हम लोग को ये पता चलेगा कि इसमें तीन कैटेगरी होती है. एक तो ऐसा कुछ हो सकता है कि अल्काइल ग्रुप के ऊपर R के ऊपर OH अटैच्ड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कार्बन है ये कोई एलाइलिक कार्बन हो. सो इट कैन बी ऑल्सो एलाइलिक अल्कोहल. और थर्ड पॉसिबिलिटी, ये वाला कार्बन कोई बेंजाइलिक कार्बन भी हो सकता है. हमने पढ़ रखा है एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होता है, और मैं रिवाइज भी करवा दूंगा. तो इट कैन बी अ बेंजाइलिक अल्कोहल ऑल्सो, और इट कैन बी सिंपली अल्काइल अल्कोहल, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल. सो इट कैन बी अल्काइल अल्कोहल्स ऑल्सो. इन दिस कैटेगरी इट कम्स. एंड when the carbon which has double bond and also OH group, then this kind of alcohols are called as vinylic alcohol. For example, if I write CH2 CH double bond OH, या तो फिर CH3 CH double bond CH2. In this case, अगर ये कार्बन, if this carbon which is also having double bond on it, इस पे अगर OH ग्रुप अटैच हो या फिर उधर अटैच हो ऑन एनी कार्बन, सो दिस कैटेगरीज आर कैटेगरीज ऑफ विनाइलिक अल्कोहल्स. व्हाट इज विनाइलिक अल्कोहल? OH ग्रुप is attached to that carbon which is part of double bond or which is involved in carbon carbon double bond. and alkane, ये definitely इसका मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं. if ethene ethine CH triple bond CH, in the ethine if one hydrogen atom is replaced by OH group, so it is a kind of alkyne carbon, triple bonded carbon where OH group is attached. So hybridization wise तीन तरह की हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड कार्बन की बॉन्डिंग मिलती है. सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन अल्कोहल इसी टाइप के है. इसमें फर्दर तीन टाइप आ जाती है, अल्काइल, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल. इट इज बेंजाइलिक. सो एवरीवन, वीडियो पॉज करो और पहले ये पूरा नोट डाउन कर लो. हाउ बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन अल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड. राइट इट डाउन. Okay, we need to discuss this kind of alcohol, alkyl, allylic and benzylic alcohols in detail. इनको हमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है. So let's start with first alkyl groups alcohol. Alkyl groups. Definitely, what is alkyl group? Alkyl group is saturated CnH2n plus 1 and a valency group. जब भी किसी भी अल्केन से, किसी भी करस्पॉन्डिंग अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाला जाता है फ्रॉम द अल्केन्स, दिस इज अल्केन. इफ एक हाइड्रोजन निकाला जाए तो प्रपोर्शन बन जाता है CnH2n plus 1, और फिर वहां पर कार्बन पर वैलेंसी आ जाएगी. देयर विल बी अ वैलेंसी
on the same valency if OH group is attached, same hydrogen के place पर OH group attached है, so I will call it alcohol attached to alkyl group. So इसका example, suppose we are starting with propane, CH3, CH2 and CH3. Now in this case ये अल्केन है, इसका कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल कर at same place if one hydroxy group is shown, so this will become a corresponding alkyl group attached with alcoholic functional group. So suppose I am showing one hydrogen of this middle carbon is replaced by OH group, so it will be CH3, CH and CH3 and यहाँ पर OH आएगा. Now it can be done further also. अभी भी main chain में hydrogen है. If more hydrogens are replaced, then CH3, CH, CH2, OH. See, out of this 3 hydrogen, इसका एक hydrogen remove किया and OH group show कर दिया. So it is also alcohol. Then further, इसके और आगे. Okay, if from this carbon also one hydrogen is replaced by hydroxy group, so it will become CH2, CH and CH2. Attached with each carbon is attached with hydroxy group and hydroxy group. So the first one is alkane and rest alls are alcohols. ठीक है, इसमें सिर्फ एक OH ग्रुप है, इसमें 2 OH ग्रुप है एंड यहाँ पर 3 OH ग्रुप है. बट द थिंग इज, वेयर इज अवर अल्काइल अल्कोहल? अल्काइल अल्कोहल मीन्स अल्केन में से जब पहला हाइड्रोजन निकलता है तो ही अल्काइल ग्रुप आता है. दिस इज नॉट अल्काइल ग्रुप. व्हाई? बिकॉज इन दिस चेन आई एम द स्टार्टिंग अल्केन, उसमें 2 हाइड्रोजन निकल गए. ये एक पहला निकला और एक ये, तो ये चेन अल्काइल ग्रुप नहीं है. And this is also not alkyl. So in this case यहाँ पर corresponding alkane और इसके चेन में एक हाइड्रोजन का वैलेंसी, दूसरे हाइड्रोजन का वैलेंसी एंड देन थर्ड हाइड्रोजन का वैलेंसी. टोटल 3 हाइड्रोजन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकल चुके हैं. ओनली दिस फर्स्ट वन इज अल्काइल ग्रुप. सिर्फ ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये इतना वैलेंसी के साथ, बिकॉज अल्केन में और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है. बट रेस्ट चेन ऑफ कार्बन इज नॉट अल्काइल. सो दिस इज ओनली अल्काइल अल्कोहल. सो अल्काइल अल्कोहल मीन्स वेयर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल से एक हाइड्रोजन एटम निकलता है और उसी प्लेस पर सेम कार्बन पर एक OH ग्रुप आ सकता है. दिस OH ग्रुप कैन बी एनीवेयर, on the middle of chain, on the corner carbon, anywhere, but only one hydrogen should be removed. तो यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ from the alkanes, if one hydrogen is removed, then the proportion will become Cn H2n plus 1 and उस कार्बन पे कहीं ना कहीं एक जगह वैलेंसी आएगी on the carbon chain, तो यहाँ एक डैश आ जाएगा और we can write R dash. So this was alkane and this proportion is the alkyl group. It is not complete compound क्योंकि वैलेंसी है तो आगे कुछ मिसिंग है, that's why it is group. But alkanes are compound. There is no valency, no dash on the proportion. So this is how alkyl alcohols can be identified. You need to understand कि इनमें कौन सा अल्काइल ग्रुप है, सिर्फ ये अल्काइल ग्रुप है. हाँ, वैसे इनको जिस अल्कोहल में एक OH ग्रुप हो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी लिखते हैं. We can also write मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. जिस हाइड्रोकार्बन चेन पर 2 OH ग्रुप अटैच हो उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स भी लिख सकते हैं. डाईहाइड्रिक अल्कोहल. And on any carbon chain, if 3 OH group is attached, so it is trihydric alcohol. So it is very simple.
only a monohydric alcohol of the alkane chain, of alkane chain, monohydric alcohol will also be called as what? Alkyl alcohol. Only this one is the alkyl alcohol. And ये जो compound है ये क्या है? Alkane. It is alkane. Alkane का जब पहला हाइड्रोजन निकलता है तो एक अल्काइल ग्रुप आता है, and then the corresponding monohydric alcohol can also be known as alkyl alcohol. So everyone, ये लिख लो सब लोग, everyone write it down. What is alkyl alcohols? Okay, now let's consider the position of OH group. OH group of this alkyl alcohol can be on primary carbon. Of course, इसमें एक ही OH group होता है. alkyl group में एक वैलेंसी होती है, just एक ही वैलेंसी होती है, तो एक ही OH group होगा. तो वो OH group प्राइमरी कार्बन पर अटैच है या सेकेंडरी कार्बन पर अटैच है या तो फिर किसी टर्शरी कार्बन पर अटैच है. That also we can look. So consider alkane if this is the corresponding alkane. ओके इसमें ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है. दिस कार्बन इट इज बॉन्डेड विथ 1 and 2, एक ऊपर और एक नीचे. ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है. दिस कार्बन is attached with 1 carbon on the left, 1 carbon on right, 1 carbon below. ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड है. दिस कार्बन इज ऑल्सो बॉन्डेड विथ ओनली 1 कार्बन. मतलब इस पूरे चेन में, ब्रांच चेन में, ये एक 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है. और कहाँ कहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है? ऑल कॉर्नर कार्बन और ऑल एंडिंग. यहाँ नीचे आने वाला चेन एंड हो गया है, इसके नीचे और कोई कार्बन नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो टर्मिनल और 1 डिग्री कार्बन. दिस कार्बन इज ऑल्सो a 1 degree carbon. This carbon atom, it is 2 degree carbon atom. This carbon atom, it is attached with one side, two side carbons are there, so it is also a 2 degree यानी secondary carbon है. और जबकि ये एक tertiary carbon है, 3 degree carbon है. So if hydrogen from primary carbon is replaced by OH group, तो क्या होगा? सपोज इधर या फिर इधर या इधर, इन तीनों में से कोई भी एक का हाइड्रोजन रिप्लेस करना है. नाउ आई एम शोइंग इट हियर. CH3, CH और नीचे CH2 and CH3, CH2 and here this 3 hydrogen out of 3 only 2 hydrogen remains. इस पे एक वैलेंसी आ गई and then at same valency of the carbon OH group is shown. सपोज इधर या फिर इधर, चलो यहां दिखाते हैं, इसका एक हाइड्रोजन एटम OH ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है. सो नाउ वी कैन शो दिस हाइड्रोकार्बन चेन. वैलेंसी इधर आएगी, इट विल बी CH3, CH, CH2, CH3 और नीचे यहां पर 2 हाइड्रोजन है. इफ इट बिकम्स CH देन ये कार्बन पे एक वैलेंसी आ जाएगी and CH3. So on this valency a functional group, alcoholic functional group is shown. And in the same way, if on this carbon एक हाइड्रोजन है, if it is removed then इस पे एक वैलेंसी आ जाएगी. If I write CH3 then C, CH2, CH3 and नीचे CH2, CH3 and on this carbon where एक हाइड्रोजन गायब कर दिया है. अब इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, 1 2 3, यानी एक वैलेंसी, एक फ्री बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच्ड है. तो क्या होगा? सी आइडेंटिफाई दिस OH group is attached to which kind of carbon atom?
प्राइमरी कार्बन, इट इज अ प्राइमरी कार्बन बिकॉज ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, एक प्राइमरी कार्बन है. हेंस दिस एंटायर चेन विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल. नो मैटर कि प्राइमरी कार्बन के आगे कहीं दूसरे टाइप का कार्बन ब्रांचिंग है या नहीं है, बट दिस अल्कोहल विल बी अ 1 degree alcohol or a primary alcohol. Here OH group is attached to that carbon which in turn is attached with, this is in turn is attached with 1 and 2. इस पे दो कार्बन अटैच है, ये एक सेकेंडरी कार्बन है. If OH group is attached on secondary carbon, 2 degree carbon, so alcohol be 2 degree alcohol or it will be secondary alcohol. If the OH group is attached to that carbon which has 3 other carbon, 1 2 3, means ये एक 3 degree carbon atom है, tertiary carbon atom है. 1 2 3 तीन other carbons इसके एतराफ में sides में present है. So it will be called as, either the entire compound will be called as 3 degree alcohol or tertiary alcohol. So here we identify alkyl alcohol which has only one OH group. It is also known as what? Monohydric alcohol. So this monohydric alcohol जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप है, एक और पूरे कंपाउंड में यहाँ भी सिर्फ एक OH ग्रुप है, वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन वेयर इट इज अटैच्ड. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन वी डोंट लुक एंटायर चेन, वी जस्ट लुक दैट ये कार्बन कैसा है. जहाँ OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन टर्शरी है ना. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जहाँ OH अटैच है वो कार्बन प्राइमरी है ना. जस्ट दैट थिंग. सो दिस इज हाउ monohydric alcohol can be further understood, or alkyl alcohol. So this example all of you can note down. Now let us discuss allylic position. If you remember, what is allylic position or allylic carbon atom? So what allylic carbon atom means? Any carbon atom which is next to the double bonded carbon. Now these are two double bonded carbon. अभी इसमें आगे और कोई भी कार्बन नहीं है, मतलब एलाइलिक कार्बन एब्सेंट है. बट इफ आई एक्सटेंड द चेन, इफ आई राइट CH2 CH3, तो इसमें जस्ट जो फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू में है, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बाजू वाला जो नेक्स्ट कार्बन होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज एलाइलिक कार्बन एटम. इसी को हम लोग एलाइलिक पोजीशन बोल सकते हैं या तो फिर एलाइलिक कार्बन एटम बोल सकते हैं. दैट कार्बन इट कैन बी ऑन एनी साइड. हो सकता है यहाँ भी चेन एक्सटेंड हो तो भी एलाइलिक कार्बन आएगा, यहाँ पर भी एलाइलिक कार्बन हो सकता है, उधर भी हो सकता है. सो एनी कार्बन विच इज जस्ट नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज एलाइलिक पोजीशन. एंड इफ इसका हाइड्रोजन एटम किसी OH ग्रुप से रिप्लेस होता है, तब इफ आई राइट CH2 CH एंड CH3, ये एलाइलिक पोजीशन है. इसका हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम OH ग्रुप से रिप्लेस करना है. यू कैन राइट OH बिलो और अबव और ऑन राइट हैंड साइड. बट ये OH कौन से कार्बन पर अटैच्ड है,
on the allylic carbon. So that's why this alcohol will be allylic alcohol. Now ऊपर जो example दिया है, if I show OH group here on this carbon by replacing its one hydrogen atom, so I can write CH2 double bond CH, हाँ यहाँ पर CH3 लिखना पड़ेगा और यहाँ एक वैलेंसी आ जाएगी. And if OH is attached here, again OH is attached on that carbon which is next to double bonded carbon, मतलब ये भी एक allylic position है, ये भी allylic alcohol है. और एक एग्जांपल देखते हैं. See, this is allylic carbon. अगर इसमें ऊपर ब्रांच है, साइड में एक कार्बन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है, यानी CH ग्रुप है. If this H is replaced by OH, then also it is alcohol. So all OH group attached to the allylic position is allylic alcohol. So all these three is nothing but allylic alcohols. ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स allylic alcohols के एग्जाम्पल है. बट डिफरेंस ये है, यहाँ OH ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है उसके ऊपर सिर्फ एक कार्बन है, एक अदर कार्बन अटैच है. एंड इसमें OH ग्रुप जो भी allylic कार्बन पर अटैच है उस पर दो अदर कार्बन अटैच है. यहाँ OH ग्रुप जिस allylic कार्बन पर, allylic पोजीशन पे अटैच है उसके ऊपर 1, 2, 3 अदर कार्बन अटैच है. सो अकॉर्डिंगली ये वाला allylic अल्कोहल 1 डिग्री allylic अल्कोहल है, यानी प्राइमरी allylic अल्कोहल है. दिस इज ऑल्सो allylic अल्कोहल बट इट इज 2 डिग्री अल्कोहल. एंड दिस वन इज ऑल्सो allylic alcohol but it will be tertiary allylic alcohol. So allylic position also, allylic carbon can also be primary, secondary, tertiary, and accordingly the alcohol will be primary, secondary and tertiary. So everyone, ये भी आप लोग लिख के ले लो. You just remember, इसमें आपको ये ध्यान रखना है allylic पोजीशन जो होती है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट होती है. सो कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन, next to double bonded carbon on any side, just next to double bonded carbon is allylic carbon atom. So everyone, वीडियो पॉज करो और ये नोट डाउन कर लो. So now the benzylic position is also very important position. Benzylic means on benzene ring, which is C6H6. इसका molecular formula है C6H6. अगर इसमें एक वैलेंसी आता है तो it will become C6H5 और एक डैश. उस डैश पर आगे कार्बन चेन अज्यूम करो, CH2, CH2 and CH3 like that. मतलब कहीं भी एक हाइड्रोजन, यहाँ सब जगह H है बट अभी यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ CH2 and CH3 ग्रुप है. तो जो भी कार्बन जस्ट एरोमेटिक कार्बन का नेक्स्ट कार्बन होता है, ऑल दिस 6 कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर एरोमेटिक कार्बन. और एरोमेटिक रिंग का जो भी जस्ट नेक्स्ट कार्बन होता है
दिस कार्बन, नॉट दिस, इट इज नॉट नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग, बीच में एक कार्बन है, इससे ये जो पोजीशन है उससे बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन और द बेंजाइलिक कार्बन एटम. सो व्हाट इज बेंजाइलिक पोजीशन? अ कार्बन एटम जस्ट नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग. अगर इसके हाइड्रोजन की जगह पर OH ग्रुप दिखाएंगे, देन वी विल गेट द करस्पॉन्डिंग बेंजाइलिक अल्कोहल्स. सो बेंजाइलिक अल्कोहल्स के एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं. बेंजाइलिक अल्कोहल, see, if I write C6H5, it is C6H5 because एक वैलेंसी है. and if I write CH3, मतलब आगे और कार्बन कंसिडर नहीं करना है, and then one hydrogen is removed and OH group comes. So OH is attached to that carbon which is next to aromatic ring, means it is benzylic alcohol. Similarly, aromatic ring and CH2 CH3, in this two carbon, this is benzylic carbon. इस पे OH ग्रुप दिखाना है तो पहले एक हाइड्रोजन निकलेगा और सेम कार्बन पर OH ग्रुप आएगा. दिस इज ऑल्सो अल्कोहल विच इज बेंजाइलिक अल्कोहल बिकॉज इट इज अटैच्ड टू अ कार्बन. OH is attached to a carbon next to aromatic ring, benzylic position. And सपोज नाउ ये कार्बन बेंजाइलिक है, नॉट दिस वन. ये एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्ट अटैच नहीं है, ये भी डायरेक्ट अटैच नहीं है. इट इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन विच इज एरोमेटिक कार्बन. सो दिस इज बेंजाइलिक. इसके हाइड्रोजन पर OH ग्रुप शो कर दिया. सो लेट्स सी द डिफरेंस. ऑल आर बेंजाइलिक अल्कोहल बट दिस कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन. क्यों? बिकॉज ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है. दिस कार्बन इज अटैच विथ 1 कार्बन एंड रिंग का कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है. दिस कार्बन इज अटैच विथ 1 एंड 2 और एक रिंग का कार्बन, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन है. तो बेंजाइलिक अल्कोहल में प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल एंड टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल हो सकता है. इट कैन बी व्हाट 1 डिग्री और प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल. इट इज नॉट अल्काइलिक, इट इज बेंजाइलिक ग्रुप. ये कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसमें एरोमेटिक रिंग है. सो प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल और टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल अकॉर्डिंगली. सो एवरीवन, ये पार्ट भी लिख के ले लो. व्हाट इज बेंजाइलिक पोजीशन? व्हाट इज बेंजाइलिक पोजीशन एक्चुअली? इट इज व्हाट? अ कार्बन एटम नेक्स्ट to aromatic ring. Carbon atom which is next to aromatic ring is benzylic carbon atom. Pause the video and note it down. So this is how mainly alcohols are classified. Which are different type of alcohols classification? Let's again draw the chart. So the classification of alcohols. First, it is based on what? Based on hybridization of carbon. So how alcohols are classified? The compounds which are called as alcohols are classified into first category where what? Where carbon atom is having which hybridization? sp3. Or second part is where carbon atom is having
sp2 hybridization, and the third part is what? The carbon atom has sp hybridization. What we saw? sp3 hybridization, sp2 hybridization and sp hybridization. Now ये इसमें आगे क्या अटैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके आगे अगर अल्काइल ग्रुप है तो उसे हम अल्काइल अल्कोहल बोलेंगे. इट कैन बी अल्काइल अल्कोहल. इसके आगे अगर डबल बॉन्ड्स डेड कार्बन अटैच है तो इस पोजीशन को हम लोग एलाइलिक पोजीशन बोलेंगे. सो इट कैन बी एलाइलिक अल्कोहल. इस कार्बन के आगे अगर रिंग एरोमेटिक रिंग अटैच्ड है तो इस कार्बन को बेंजाइलिक विच इज जस्ट नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, तब हम इसे बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे. ओके. एंड फर्दर बेस्ड ऑन दैट कि ये जो कार्बन है इसमें कितने अदर कार्बन अटैच है, 1 2 3 है या सिर्फ एक है, बाकी दोनों H हो और सिर्फ एक कार्बन, या फिर 2 कार्बन अटैच है, एक H, या तो 3 कार्बन अटैच है. बेस्ड ऑन दिस कार्बन बिकम्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. मतलब इन तीनों में फर्दर अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकता है और 3 डिग्री भी बना सकता है, जो कि अभी हमने देखा. करेक्ट. एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक कार्बन में यहाँ डबल बॉन्ड होना जरूरी है. एंड बेस्ड ऑन दीज वैलेंसीज, यहाँ H है या अदर कार्बन है, बेस्ड ऑन दैट एलाइलिक भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हुआ करता है. एंड इफ इट इज एरोमेटिक रिंग मीन्स बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक कार्बन का अल्कोहल. तो अब इसमें और कार्बन अटैच है या फिर हाइड्रोजन अटैच है, वॉट एवर, बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो इट कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. So this is the vast group where the carbon attached with OH is having 4 single bond, sp3 hybridization. उसमें 3 टाइप के अल्कोहल आते हैं. एंड इस तरह के अल्कोहल्स को हम लोग जस्ट विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं. विनाइलिक अल्कोहल where a double bonded out of 2 double bonded carbon, किसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH ग्रुप अटैच्ड है. जैसे कि इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है CH2 CHOH, इन विच इथीन इज अटैच्ड विद OH. इसको विनाइल अल्कोहल बोला जाता है, विनाइल अल्कोहल. देन अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन या प्रोपाइन, उनमें कहीं भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है. सो दिस इज द आइडिया हाउ ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज लुक्ड अराउंड. किस तरह से अल्कोहल को क्लासिफाई किया जाता है. रिमेंबर, फॉर दिस 2 टाइप वी नेवर जज देम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बट फॉर दिस टाइप अल्काइल, एलाइल एंड बेंजाइल you need to judge them primary, secondary and tertiary, as primary carbon, secondary carbon और tertiary carbon attach with OH group. ये कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, based on that. So you can pause the video and write down this entire classification of alcohols. Okay, now we are going to start about nomenclature of alcohols. अल्कोहल का नेम, nomenclature कैसे लिखा जाता है. अल्कोहल्स को नेम कैसे असाइन होता है. इसमें कॉमन सिस्टम है, IUPAC सिस्टम है, और एक सिस्टम है जो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट समटाइम इट इज़ यूज्ड, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, विच इज़ कॉल्ड एज कार्बिनॉल सिस्टम. तो यहाँ पर हम लोगों को
कॉमन नेम्स IUPAC सिस्टम से आने वाला नेम, और एक है which is called as कार्बिनॉल नेम्स, कार्बिनॉल सिस्टम नेम। इन 3 तरह के नेमिंग को हम लोग को समझना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेमिंग ऑफ अल्कोहल। हाउ कॉमन नेम में आपको पहचानना पड़ेगा कि अल्काइल ग्रुप प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, नियो है, आइसो है, किस तरह का है। So here we are starting first of all common names of the alcohol. In the common name, जो भी अल्काइल अल्कोहल्स हैं, फॉर अल्काइल अल्कोहल फर्स्ट, उसमें कुछ अल्काइल ग्रुप को एन अल्काइल, आइसो अल्काइल, नियो अल्काइल, टर्ट अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल बोला जाता है। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड अल्काइल ग्रुप हो तो उसका कोई कॉमन नेम नहीं आता है। सो इफ आई राइट फ्यू एग्जांपल्स हियर, alcohol having 1 2 3 4 5 carbon, again OH group attached to the chain of 1 2 3 4 5 carbons, then again OH group is attached to a carbon chain जिसमें एक ब्रांच है, ब्रांच इंक्लूड करके ये सब 5 कार्बन है। एंड देन OH group, and this is OH को छोड़कर including all the branch there are 5 carbon, and the last possibility so all of them जिधर जिधर OH group attached है, ये सब के सब OH group निकाल लो तो they are corresponding alkyl group, and these all alkyl group, जितने भी alkyl groups है they are basically what, C5H11 dash, मतलब ये सब के सब पेंटाइल ग्रुप है। ठीक है, नाउ इन दिस पेंटाइल स्टेट चेन है और पेंटाइल का वैलेंसी भी लास्ट में है, बीच में कहीं है नहीं, तो ये एन पेंटाइल ग्रुप है। OH ग्रुप एन पेंटाइल की वैलेंसी पे अटैच दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई विल राइट द नेम ऑफ अल्कोहल एज एन पेंटाइल अल्कोहल। मीन्स पहले मुझे अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है और उसमें एक वर्ड जोड़ देना है अल्कोहल। सपोज पेंटाइल ग्रुप में सेकेंड कार्बन पे वैलेंसी है, टर्मिनल कार्बन पे नहीं है, चेन स्टेट है, बट वैलेंसी ऑफ अल्काइल इज ऑन सेकेंड कार्बन, इसको सेकेंडरी अल्काइल बोलते हैं। एंड यहाँ OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, इट इज अटैच्ड टू अ कार्बन व्हिच इज सेकेंडरी कार्बन। ओके, सो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सेक पेंटाइल अल्कोहल। हियर द कार्बन इज प्राइमरी, नो डाउट, जिस कार्बन पे OH आएगा वो कार्बन प्राइमरी है, बट अपोजिट कॉर्नर में एक एल शेप फॉर्म हो रहा है, दो मिथाइल एक ही कार्बन पे अटैच्ड है और बाकी पूरा चेन स्टेट है, आगे कहीं ब्रांच नहीं है। सो ऐसा अल्काइल जिसमें वैलेंसी N की तरह लास्ट में हो, लेकिन सेकेंड कार्बन पर एक एल शेप फॉर्म हो रहा है, दो मिथाइल अटैच हो, बाकी पूरे चेन ऑफ कार्बन स्टेट हो और लास्ट में वैलेंसी रह जाए, उसको आइसो अल्काइल बोलते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस पेंटाइल अल्कोहल इज आइसो पेंटाइल
alcohol. Correct. Now look here. It is also a primary carbon because जिस कार्बन पे OH दिख रहा है ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन पे अटैच है. तो इसमें अगेन चेन के सेकेंड कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप है. जब चेन के सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल का ब्रांच होता है इट इज आइसो. जब चेन के सेकेंड कार्बन पर दो बार मिथाइल का ब्रांच और आगे एक और कार्बन हो, दो मिथाइल का ब्रांच और आगे भी एक कार्बन चाहिए इस, तो इतने पार्ट को नियो अल्काइल बोलते हैं जो मिलके एक प्लस शेप बनाती है. आइसो या तो एल शेप या फिर टी शेप बनाता है, बट ये चेन प्लस शेप बना रही है. सो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज नियोपेंटाइल अल्कोहल. एंड यहाँ OH ग्रुप इस पूरे पेंटाइल के 5 कार्बन के टर्शरी कार्बन पर अटैच है. इट इज अ टर्शरी कार्बन. व्हाई? बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच विथ 1, 2 and 3 other carbon. Hence it will be called as tert pentyl alcohol. तो कॉमन नेम में हम लोग पूरी चेन को, मेन चेन ब्रांच सबको मिलाकर कार्बन काउंट करते हैं और उसको एक नेम देते हैं. जहां पर ये पॉसिबल हो, जहां ये पॉसिबल नहीं हो उसका कॉमन नेम ही नहीं लिखा जाता है. तो पूरे ऑल कार्बन ब्रांच लॉन्ग चेन सब कुछ मिलाकर उसका ओवरऑल कितने कार्बन है वो देखकर अल्काइल ग्रुप का नाम सेलेक्ट किया जाता है. इफ पूरे फुल OH को छोड़कर पूरे स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है तो वो पेंटाइल रहेगा, 6 कार्बन है तो वो हेक्साइल बन जाएगा. सो हियर वी डोंट क्लासिफाई मेन चेन देन ब्रांच. नहीं, ये पूरा 5 कार्बन इंक्लूड होकर C5H11 है, ये पूरा यहाँ तक इंक्लूड करके. तो इस तरह से कॉमन नेम लिखा जाता है. कॉमन नेम में हमें अल्काइल ग्रुप का टाइप पहचानना होता है इंक्लूडिंग ऑल ब्रांचेस, सब कुछ देखकर. और उसमें एन अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, आइसो अल्काइल, नियो अल्काइल एंड टर्शियरी अल्काइल, जस्ट यही टाइप है. कोई एक्स्ट्रा टाइप है ही नहीं. एक्स्ट्रा कुछ अरेंजमेंट दिखा तो कॉमन नेम इज नॉट पॉसिबल. सो एवरीवन, कॉमन नेम का ये एग्जाम्पल लिख लो. Now I will tell you where common name of alkyl group is not possible. alkyl group का common name कहाँ possible नहीं होता है. चलो, see this where it is not possible. Let's see. CH3CH, CH2, 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 CH3 एंड यहाँ डैश है. एज अ होल ये पूरा मिलकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है. 6 कार्बन में से एक हाइड्रोजन गायब हो गया है. अगर ये हाइड्रोजन रहता है यहाँ तो हम इसे क्या बोलते थे? हेक्सेन. अब हेक्सेन का एक हाइड्रोजन गायब हो गया है, सो इट इज हेक्साइल. एंड लेट्स सी OH इज हियर. देन इसी से रिलेवेंट CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3 and OH, ये भी एक्साइल अल्कोहल है. Here on the second carbon one hydrogen is replaced, तो ये सेकेंडरी कार्बन पर अटैच है. ये OH भी सेकेंडरी कार्बन पर अटैच है क्योंकि ये भी एक 2 डिग्री कार्बन है. बट अगर स्टेट चेन के सेकेंड कार्बन पे वैलेंसी हो तो उसे सेकेंडरी अल्काइल बोलते हैं. और ये सेकेंडरी कार्बन है बट दिस इज नॉट कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्काइल. सो यहाँ पर इफ OH ग्रुप इज attached on the state chain second carbon, then I will write the name secondary hexyl alcohol. This is a hexyl alcohol but इसका common name नहीं है. No common name. याद रखना चेन स्टेट है
लेकिन सेकेंड को छोड़कर थर्ड फोर्थ कहीं भी OH ग्रुप अटैच है, डोंट कॉल इट इज सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। भले ही इसमें बीच में सारे कार्बन सेकेंडरी होते हैं, कॉर्नर का टर्मिनल कार्बन 1 डिग्री होता है, बट बीच के सारे कार्बन सेकेंडरी होता है, बट यहाँ पर ही सेकेंड कार्बन पर ही फंक्शनल ग्रुप हो या वैलेंसी हो, तभी उसे सेकेंडरी अल्काइल बोला जाता है। देन आइसोहेक्साइल का एग्जाम्पल देखो। इन द आइसोहेक्साइल एक कार्बन को ब्रांच में जाना पड़ेगा, तो ये बन गया आइसो ग्रुप, इसमें 3 कार्बन एडजस्ट हो गए, मेक इट हेक्साइल। ये 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन, तो ये सेकेंडरी, ये आइसोहेक्साइल ग्रुप है। इट इज आइसोहेक्साइल इंक्लूडिंग दिस कार्बन ऑल्सो, ये पूरा मिलाकर आइसोहेक्साइल है। इफ इट इज OH then just add the word alcohol, isohexyl alcohol। if यही CH3 यहां पर होता, इवन दिस इज ऑल्सो अ हेक्साइल ग्रुप, ये भी पूरा एक हेक्साइल ग्रुप है, बट कॉमन नेम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि CH3 का ब्रांच 3rd कार्बन पर आया तो क्या होगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, तो सिंपली इट इज नो कॉमन नेम, इसका कोई भी कॉमन नेमिंग है ही नहीं। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है कि कब हम लोग हेक्साइल को नियो बोलेंगे, आइसो बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे, एन बोलेंगे, और कब कुछ भी नहीं बोलेंगे। इफ आई हैव दिस एग्जाम्पल CH3 देन दिस हेक्साइल, ये पूरा एक हेक्साइल ग्रुप बन गया 6 कार्बन की वजह से, और सेकेंड कार्बन पर 2 बार मिथाइल दिख रहा है, मतलब ये नियो हेक्साइल है, सो इट विल बी नियो हेक्साइल अल्कोहल। बट अगर यही ब्रांच इधर होती, इफ इट इज CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 and OH, so this is 3rd कार्बन, उस पर 2 बार मिथाइल आया, तो उसको जबरदस्ती नियो नाम नहीं देना है इस अल्कोहल का, भले ही ये हेक्साइल है, इवन इट इज ऑल्सो हेक्साइल अल्कोहल, बट देयर इज नो कॉमन नेम। सो हियर ओनली 2 टाइम मिथाइल ऑन द सेकेंड कार्बन इज कॉल्ड नियो। 3rd पे गया तो नियो नहीं होता है, आगे गया तो नियो नहीं होता है। हाँ, इसमें अगर और आगे आ गया तो ये कार्बन टर्शरी बन जाएगा, तब उसका कॉमन नेम आएगा। जहाँ OH है वहीं 2 ब्रांच हो जाए तो वो टर्शरी हेक्साइल बन जाएगा, बट सेकेंड छोड़कर और कहीं भी हो तो कॉमन नेम नहीं आ सकता है, देयर विल बी नो कॉमन नेमिंग। सो ये चीज याद रखनी है, कब सेकेंडरी अल्काइल वर्ड यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, कब आइसो अल्काइल वर्ड यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, कहाँ नियो अल्काइल वर्ड यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होता है। सो ओनली फ्यू लिमिटेड एग्जांपल्स आर कॉमन नेम, एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उसको छोड़कर कोई भी पॉसिबिलिटी दिखती है तो कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होता है, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड कॉमन नेम में हम ये नहीं देखते हैं कि ये ब्रांच तो छूट गया तो हम इसको पेंटाइल बोलेंगे क्या, नहीं, यानी ये एक ब्रांच निकाल लिया हमने और बचे हुए को पेंटाइल अल्कोहल नहीं बोलेंगे, नो। कॉमन नेम में पूरा एक साथ सभी कार्बन को एक साथ काउंट करना होता है। Now let us learn कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नेमिंग। सबसे सिंपल अल्काइल अल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल। The very simple example of alcohol is CH3OH, which is also called as methyl alcohol. And now we'll see how carbinol system is used. So this methyl alcohol
In the carbinol system, it is also called as carbinol. मिथाइल अल्कोहल को ही एक्चुअली कार्बिनॉल बोलते हैं, कार्बिनॉल. देन इफ आई वांट टू राइट इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, तो मैं उसे मिथाइल अल्कोहल का एक डेरिवेटिव मानूंगा. मिथाइल में सिर्फ एक कार्बन होता है, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है, यानी जो मिथाइलिक कार्बन है H, H एंड H, उसके तीनों में से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी ना किसी एक्स्ट्रा ग्रुप से हो रहा है. और ये एक्स्ट्रा ग्रुप यहाँ पर कौन सा वाला है? यू कैन सी OH एंड CH2 इज कॉमन, एंड देन यहाँ पर एक ही पार्ट एक्स्ट्रा है. तो ये जो इथाइल अल्कोहल है, इट इज इथाइल अल्कोहल. बट कार्बिनॉल सिस्टम में इसे बोला जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल. So when the word carbinol comes, remember carbinol क्या डिनोट करता है? Carbinol denotes one carbon attached with OH, carbinol, carbon and all. एक्स्ट्रा जो भी रहेगा उसको उससे पहले इंडिकेट करना है मिथाइल एक्सट्रैक्ट. So it will be called as methyl carbinol. Let's see. इसका नाम कैसे लिखोगे? ये आइसोप्रोपाइल, ये प्रोपाइल ग्रुप है और आइसो भी है, एल शेप है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है. कार्बिनॉल मीन्स दैट मच पार्ट, ये पार्ट को हम कार्बिनॉल बोलते हैं. कार्बिनॉल OH ग्रुप विथ वन कार्बन, एक्स्ट्रा क्या है? दो बार मिथाइल है. सो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डाइमिथाइल कार्बिनॉल. ओके, इफ आई टेक दिस अल्कोहल एज एग्जाम्पल, so how much part is known as carbinol? This much. OH group and the first carbon is carbinol. क्योंकि मिथाइल में सिर्फ एक ही कार्बन होता है, उसको सिंपली कार्बिनॉल बोलते हैं. अब एक्स्ट्रा क्या रह गया है इसमें? कार्बिनॉल के पार्ट के आगे एक C2H5 प्रेजेंट है, which is ethyl group. So it should be called as ethyl carbinol. Correct. If question comes, एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका कार्बिनॉल सिस्टम नेमिंग क्या है? सो पहले ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ड्रॉ करो. टर्शरी कार्बन, अ कार्बन शुड बी टर्शरी व्हेन इट इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन. तो पहले एक टर्शरी कार्बन सिलेक्ट करो, बिकॉज इट इज टर्शरी, उसी पे OH आएगा. And for butyl we need 4 कार्बन, 1 तो यही है, 2, 3, 4, मतलब एक्स्ट्रा कार्बन अभी नीडेड है ही नहीं. So it will become CH3, CH3 and CH3. Now कार्बिनॉल सिस्टम में ये कार्बन और ये OH ग्रुप इंक्लूड हो जा सकता है. अब बचा क्या? सिर्फ एक CH3 ग्रुप और एक CH3 ग्रुप और एक CH3 ग्रुप, तीनों सेम है. So we can call the same alcohol as trimethyl carbinol. It will be trimethyl carbinol. कार्बिनॉल वर्ड में OH ग्रुप और एक कार्बन आ जाता है, बचा हुआ जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसका नाम लिखना होता है जस्ट प्रीवियस टू कार्बिनॉल. एंड मिथाइल में कुछ बचता ही नहीं है, सो ओनली द नेम विल बी कार्बिनॉल. सो दिस 1, 2, 3, 4 and 5, ये एग्जाम्पल लिख लो. वी आर अज्यूमिंग दैट दे आर ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट? मिथाइल अल्कोहल. जस्ट कंपेयर. इसमें मिथाइल अल्कोहल पर 1, 2 और 3 बार, कार्बिनॉल पर यानी मिथाइल अल्कोहल या फिर कार्बिनॉल पे 3 बार एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है. इसलिए ये जो कार्बिनॉल वर्ड है उससे जस्ट पहले क्या यूज करना पड़ेगा? इसका नाम है कार्बिनॉल और उसमें 3 जगह पर CH3 आया है. सो अकॉर्डिंगली इट विल बिकम ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल. सो दिस इज हाउ कार्बिनॉल सिस्टम नेमिंग इज यूज्ड. सो एवरीवन, ये वीडियो पॉज करो और इसमें क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना. द क्वेश्चन इज
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सॉरी नॉट आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल तो यहीं पर है, आई विल राइट आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, हाउ इट इज नेम्ड इन कार्बिनॉल सिस्टम. कार्बिनॉल सिस्टम में इसको कैसे नेम किया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना खुद से. इफ डाउट आया देन यू कैन आस्क.